ऑनलाइन बच्चों को भी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे को बताओ, पेपर देख लिया सब लोगों ने? यस सर। कमेंट्स क्या हैं? चलो मेरे को पहले तो ये बताओ कि पेपर कौन सी चीज़ ऐसी है जो आपको परेशान कर रही है? यार कुछ नीश टॉपिक्स आए हैं वैसे जो हमेशा नहीं आते। रेस एथनिसिटी हो गया जैसे विलियम ऑगबर्न। रेस एंड एथनिसिटी पता होना चाहिए तुम लोगों को, ऐसी कोई नई बात नहीं है। एथनिसिटी नहीं पता कि रेस नहीं पता? बताओ। और वैसे तो आपने दिया है दोनों पे कंटेंट पर वो दिया हुआ है, मैंने बताया भी हुआ है। ट्राइब There's a के question, glotochronology. even in the case of tribe, when I told you that Macmillan Dictionary of Anthropology, वो कहता है कि ट्राइब शुड बी व्यूड इन टर्म्स ऑफ एथनिसिटी। अपने दिमाग के तार तो तुम जोड़ोगे ना भाई, मैं थोड़ी ना जोड़ूंगा। पेपर सेटर को पता है कि तुम्हारा दिमाग जो है कितना कम काम करता है, वो उससे थोड़ा ज्यादा पूछता है बस। सर विलियम ऑकबर्न। क्या चीज? विलियम ऑगबर्न एंड कल्चरल लैग। William Ogburn, actually, he is not an anthropologist, he is a sociologist. But cultural lag is a very interesting concept. You know what happens? Technology advances very fast. Material culture advances very fast. But non-material culture, it advances very slowly. Institutions, they advance very slowly. So your thought process also changes very gradually. So what happens? The thought of the present generation, it is in line with the technological advancements, it is changing. But the thought of my generation, it is in line with that generation, that much of technological advancement. तो आप लोग जो भी चेंज करेंगे, जैसे मेरे बेटे मेरे को कहते हैं बाबा आपको कुछ आता तो है नहीं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कल्चर लैग। दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, sorry, material culture, it grows very fast, while the non-material culture, the institutions, they grow very gradually. A gap results. That is called culture gap, culture lag. सर इसको लिंक कैसे करेंगे विलियम ऑकबर्न के साथ? मतलब इसको कल्चर एंड सिविलाइजेशन की बात करोगे ना? सर एक चीज जो है, ग्लोटोक्रोनोलॉजी हम लोगों ने नहीं किया डिस्कस, कभी सिलेबस से बाहर भी होगा वैसे। कल्चरल लैग वाली चीज जो है वो भी, यू कैन से इट इज ए सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, इट्स नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट। होता क्या है कि जब भी व्हेन एनीथिंग इज आस्क्ड व्हिच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, indirectly it may be, but if it is not directly, indirectly it's not a part of the syllabus, and you write to the UPSC is considered about. अब ये देखो कि शुभम टॉप किया था जिस साल, look at the paper 1, more than 60 marks worth of questions were asked out of syllabus. मैं कह दिया बच्चों को लिखो यूपीएससी को, मार्क्स आर गिवन इन ए रिलेटिव मैनर, एब्सोल्यूट नहीं होते। So certain things, let us say, even if you have basic concepts and others don't have anything about it, obviously you take an edge. Now this glotochronology, it tells us that the change in the languages that takes place over a period of time. How much a language changes in 1,000 years? Like the original Sanskrit in which Vedas were written, it was different from the language that we know are written. Similarly, every language changes. Like I did tell you about hello. What is the meaning of hello? Sail be thou. It is an 18th century English, changed over a period of time. So statistical models have been developed to tell how languages change and how much.
But statistics, it never tells the truth. Information is there with us. I mean, you want, it will be passed on to in the groups itself. But I've already told you that any question that is asked only once, the probability of being repeated is 1 in 100. If it is twice or more, obviously you must not leave. About Appadurai, Jadhavji had put in the group on 20th of August, Arjun Appadurai and his contribution. Same ditto, it has been asked. Now, to begin with, we start. ये तो क्वेश्चन 5 आ गया यार, ये 7 आ गया, क्या है यार? या दिस इज 1, फिर 5 आ गया, दिस इज 1. सोशल स्कोप एंड रेलेवेंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. क्या लिखोगे इसमें, बताओ? Obviously, you know what is anthropology and what is social cultural anthropology. Thereafter, I have literally dictated to you the changes that have taken place in social cultural anthropology in recent decades. Today we discuss almost everything on this earth, चाहे वो मी टू हो, चाहे वो रेस रिलेशंस हो, चाहे वो सबाल्टन स्टडीज हो, चाहे वो दलित इश्यूज हो, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड. एंड वो तो सारा लिख लोगे, बट व्हाट विल बी द कंक्लूडिंग लाइन? Can you think about any quote that you can give? I'm saying quote. You remember Murray last? नहीं, अभी नहीं. Murray Sir, last. anthropology is too wide to. Anthropology has become too vast to be left to anthropologists alone. लल्लू लोग याद भी नहीं रखते. That will be the concluding line. So we can also use the quote by Dan Podgett, which you sent. I didn't get you. Sir, you also sent one quote of Dan Podgett 2020. नहीं, वो तो फिर बहुत सारी हैं आपके पास. एरिक वुल्फ की भी है, बट दिस वुड बी मोस्ट रेलेवेंट हियर. हाँ जी, अच्छा. Murray last. He has written forward to the book by Angela Cheater. Her book is Anthropology and Alternative Introduction, Social Cultural Anthropology and Alternative Introduction. The last line of the foreword is that anthropology has become too vast to be left to anthropologists alone. Cultural impact of Iron Age. Agriculture. The growth of political system. Just a minute, mic दे दो. हाँ जी सर. सर जैसे उसमें पूछा था ना कि स्कोप एंड रेलेवेंस सोशल और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का सर पूछा है, तो जो ये वाला कोट है ये ओवरऑल नहीं जा रहा. No, it is written in that book only, Social Cultural Anthropology and Alternative Introduction. और कल वो वीडियो जो यूट्यूब पे देखी है, क्योंकि अगली क्लास में यही होना, तो उसमें वो था कि इस पार्ट का जो सिग्निफिकेंस है वो हर फील्ड में, वेदर हिस्ट्री वेदर सोशियोलॉजी. सर इट इज 10 मार्कर. हाँ, वो तो है ही. मैं बता रहा हूँ हाउ वी डील विद द करंट इश्यूज आल्सो, एंड देन फाइनली कंक्लूडिंग सिंगल लाइन इज देयर. ठीक है कि नहीं? इट इज नॉट दैट हाउ मच यू नो, it is that how much you can write within 7 minutes. That is crucial. Sir, regarding the same question, in the relevance part, do we have to write is it increasing or decreasing? The relevance of social. या जब हम up to date issues को discuss कर रहे हैं तो decrease कहाँ से हो जाएगा, बताओ? Sir, but आज anthropologist बहुत कम इसमें study कर रहे हैं ना societies की. तो क्या हुआ? Anthropology का relevance increase हो रहा है कि decrease हो रहा है? Question is not about anthropologists. Okay. Question is anthropology. Anthropology relevance is
increasing? वैसे कौन कह रहा है कम, बहुत कम कर रहे हैं काम? तथा करंट एंथ्रोपोलॉजी में लिखा था कि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से ज्यादा अभी फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे हैं ना, चाहे फिजिकल कर रहे हो चाहे सोशल कर रहे हो। चलो, कल्चरल इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज, पहले तो बताओ ना आयरन एज क्या होती है। जो कल्चरल इवोल्यूशन की स्टेजेस जो हैं, इट इज ऑब्वियसली पोस्ट नियोलिथिक, मेटल एज है और मेटल एज में आयरन एज है। वो देने के बाद उसके सो व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ड्यूरिंग दैट पीरियड? सारे चेंजेस आ जाएंगे, सोशल भी, इकोनॉमिक भी, पॉलिटिकल भी। चारों अर्बनाइजेशन, ट्रेड एंड एक्सचेंज, आर्ट रिचुअल, क्योंकि एग्रीकल्चर बढ़ेगी, सरप्लस हैंड्स आपके पास हो जाएंगे। एग्रीकल्चर सरप्लस हैंड्स होंगे तो दीज कुड बी यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस। इट कैन बी अर्बनाइजेशन, इट कैन बी टेक्नोलॉजी, इट कैन बी आर्ट्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स, इट कैन बी वारफेयर, डिफेंस में। ठीक है ना? जी। तो ओवरऑल सारा जो चेंज जो है, बेसिकली you call Neolithic as revolution. Actually, revolution starts with Iron Age. It literally revolutionized the way of life of the people. Sir, population boom. अब सब मैं कह तो रहा हूं ना, सब कुछ आ जाएगा उसमें। मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन may or may not be there. It depends how much area you need for cultivation, whether that area is sufficient or not, whether that is irrigated or not. And then neighboring communities, how they exchange with you, रेसिप्रोसिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। हो सकता है बगल में हंटर गैदरर हों, वो आपसे कुछ लें, आप उनको कुछ दें। लाइक यू फाइंड दैट राइस 72,000 years old in Shanidar. That is an upper Paleolithic stage and you are finding rice, दाल चावल मिलते हैं वहां पे। ठीक है ना? What kind of exchange you have? Everything will be covered there. Race and ethnicity. What is race? मैं तो चाहूंगा कि पहले लिखो what is ethnicity, what is ethnic group. Ethnic means population. Any community that you identify on the basis of a particular characteristic. It can be language, it can be dress, it can be region, it can be religion, anything. But when we use it in terms of physical features, that becomes a race. If you remember, as a pre-Mendelian concept, a race is an ethnic group. ठीक है? और फिर दोनों को रिलेट करना है आपने। और फिर then I told you that today anthropologists argue that the term even tribe, it is misnomer and they should be called as, they should be studied in terms of ethnicity. ठीक है? पहले रेस बता दें, रेस इज ए मिथ करके रिजेक्ट कर देना है। फिर एथनिसिटी जो है, एथनिसिटी और रेस जो है, दे हैव कोलाइडेड टुगेदर नाउ। Customary laws and environmental conservation. अभी तो बताया मैंने कि दोनों जो हैं वो merge together. You cannot have a separate. आधा तो पेपर 2 ही है यार। अगर प्री हिस्टोरी, इंडियन प्री हिस्ट्री निकाल दो तो क्या बचता है पेपर में, बताओ? You know, as a whole, previously, अगर इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता था क्वेश्चंस का, तो इतना अनइवन भी नहीं होता था। Most of the students, they are worried about prehistory and fossil evidence, and this question paper is full of that only. आप देखना, अपने मित्रों से पूछना, वो कहेंगे पेपर बहुत टफ आया था। Actually, whether it is easy or it is tough, it depends on whether you know or you don't. अगर तुम्हें आता है तो इजी है, नहीं आता तो टफ है। ठीक है ना? Customary laws. What are customary laws? ये तो निकम्मे लोग जरा। Laws related to The laws that have been made by the society. सर Laws झाड़ that are made by the society. ऐसे लॉज भी होते हैं जो सोसाइटी से बाहर बन के आते हैं।
Sir, the laws which allow the peaceful coexistence of a society ऐसा stemming है from practices. ये हमेशा जो है जो डेमोक्रेसीज होते हैं, द पीपल जो हैं, जो वीकर सेक्शंस होते हैं, जो सफरर्स होते हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दी जाती हैं बेस्ड ऑन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस. दे आर गवर्न्ड बाय देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन टर्म्स ऑफ सिविल लॉ. क्रिमिनल लॉ उन पे भी लागू होता है. पर उनके जो है उनका जो आपस में जो इंटर ग्रुप रिलेशन है या इंटर ग्रुप रिलेशन है, दीज आर गवर्न्ड बाय देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस एंड दैट विल फॉलो देयर कस्टमरी लॉज. तो सर आर्टिकल 371A वगैरह जो मर्जी डाल दो. मेरे को ये बताओ कि उसका इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन है. सर वहां पे सेक्रेट कॉम्प्लेक्स के थ्रू वो कर सकते हैं और नेचरमेंट कॉम्प्लेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं. हाँ जी. फिर हम सर इसमें सर खलु कल्टीवेशन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में काम आ सकता है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में काम आ सकता है. एनवायरमेंट के मामले में बताओ कंजर्वेशन में, बायोडाइवर्सिटी. भाई. आपको उसमें एग्जांपल्स भी बताने पड़ेंगे. हाउ दे मेंटेन नेचर. सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन खलु कल्टीवेशन आ सकता है ना. शिफ्टिंग कल्टीवेशन से कैसे बेनिफिट होगा? कैन एनीबॉडी टेल मी हाउ Sir, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट? आज के कॉन्टेक्स्ट में मुश्किल है सर. आज के कॉन्टेक्स्ट में मुश्किल है क्योंकि आपने बताया था जब पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन अरे होती यार, थी आज तो के कंटेक्स्ट में मुश्किल है, बट हाउ शिफ्टिंग कल्टीवेशन हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट? बिकॉज जब तक वो लैंड फैले Because you are cultivating a field for 3, 4, 5, 6, 8 years, then you shift over to another, continue with that, then shift. Meanwhile, the earlier one starts growing up. Ecological Complete deforestation never takes place. अब क्या हुआ है कि इसमें शिफ्टिंग अल्टरनेशन में इधर हमने रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया, इधर हमने पंचायत फॉरेस्ट बना दिया, इधर कुछ और कर दिया. फिर उसी में बार बार अगर झूम साइकिल अगर 6 से 8 साल का हो जाएगा तो फर्टिलिटी तो लौटेगी नहीं. सो देयर मेथड ऑफ कल्टीवेशन इट वाज वेल इन सिंक विद द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. इवन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ. मैं बिरहोर में अभी जब था तो वो जो है वो फूड कलेक्टर हैं, जड़ी बूटी वगैरह, और बाकायदा देख करके कि जो प्लांट प्रॉपरली ग्रो नहीं किया है उसको नहीं उखाड़ते थे वो. They keep it for the next season. हमारे यहाँ क्या है कि भाई कटाई करनी है तो कर दो, सारा ग्राउंड रेज कर दो पूरे का पूरा. तो उनके जो कस्टमरी लॉज जो हैं, हाउ दे हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में सबसे पहले तो बेसिक नीड्स की बात होगी, फॉरेस्ट की बात होगी, पानी की बात होगी, फूड की बात होगी. सर वो तो सारा आपका नेचरमैन भी उसमें आ जाएगा और सेक्रेट कॉम्प्लेक्स भी उसमें आ जाएगा. वो तो सारे आ ही जाएंगे. बट यू हैव टू टेक एग्जांपल्स फ्रॉम द सिंपल सोसाइटीज. सो आई विल रिकमेंड कि आमतौर पे हम लोग प्रोफेसर विद्यार्थी की जो किताब है ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक्स की बात करते हैं. मैं ये चाहूंगा कि उनका जो फर्स्ट हाफ है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और रिलीजन, इनको ज्यादा सीरियसली ध्यान दिया जाए. ठीक है. और इस पेपर को मॉडल ना मान के चला जाए कि पेपर 1 में इधर होता है तो पेपर 2 में उधर होता है. देयर इज नो क्लियर कट डिमार्केशन बिटवीन पेपर 1 एंड पेपर 2. दैट इज नॉट द केस. इट डिपेंड्स ऑन द पेपर सेक्टर. तो अगर पेपर ये जहां बना है, जहां प्री हिस्ट्री जो है प्रोडोमिनेट करती है, तो जाहिर है कि वो पेपर 1 में भी प्री हिस्ट्री. अब मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि प्री हिस्ट्री से 80 to 100 मार्क्स वर्थ ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. इसमें ही 100+ आ गया प्री हिस्ट्री. पेपर 2 तो बाकी है अभी. ठीक है. सो दैट विल नॉट बिकम ए रूल, बट ऑन एन एवरेज यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि जब प्रिपेयर करना है तो पेपर 1 और पेपर 2 में वैसे भी कभी आप सेपरेट नहीं कर सकते. जैसे रेसेस इन इंडिया है, पेपर 2 में है तो पेपर 1 में पूछ देते हैं. न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन है, पेपर 1 और 2 दोनों में पूछ देते हैं.
ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन पूछा इस बार, पहले भी पूछ चुके हैं एक बार। ग्लोबलाइजेशन एंड इंडिजिनस कम्युनिटीज, आप ट्राइब्स के एंगल से भी हैंडल करते हैं तो इंडिजिनस कम्युनिटीज कवर हो जाती हैं। बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू इन बिटवीन जो भी रिसेंट चेंजेस हुए हैं, मसाइज में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया वो कूला जो पार्टनर्स जो थे वो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना शुरू किया और पॉलिटिक्स में रूलर्स पहुंच गए। मसाइज एस्किमोस का मैंने आपको बताया है कि वो प्रिमिटिव टूल्स नहीं है, अब वो गन लेकर के हंटिंग करते हैं, करते हंटिंग ही है। तो वो ग्लोबलाइजेशन है, वो चीजें अगर याद रहें तो रिलेट करना आसान हो जाता है फिर। तो यस सर। सर इसमें टोटमिज्म का भी लिख सकते हैं ना कि टोटमिज्म हाँ, टोटल आल्सो इज मैन नेचर इंटरेक्शन ओनली। यस फिर नेचर मैन स्पिरिट की जगह है नेचर मैन टोटम कर दो, कल्चरल इकोलॉजी का कंसेप्ट हो गया। ठीक है ना? ये करके बताओ, आपको आता भी होगा लेकिन आप बता भी नहीं पाएंगे। जीन एक्सप्रेशन, ये तो किया ही नहीं अभी तक। हाँ जी सर मेंडल्स लॉ, डोमिनेंट रिसेसिव मेंडल्स एबीओ ब्लड सबसे ग्रुप का पहले एग्जांपल to start with that Mendel deals with the single genes। ठीक है, उसमें डोमिनेंट होगा और रिसेसिव होगा, एक एक्सप्रेशन हो गया। और बताओ। सर एबीओ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दे सकते अरे हैं? हो गया ना, उसमें जितने मर्जी एग्जांपल दे देना, एबीओ दे देना, आरएचबी दे देना, बस सर एमएनपी दे देना। रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड एक्सेप्शंस टू मेंडल। यार बेवकूफी है यार, वो 10 मार्कर है यार। एपिजेनेटिक्स। नहीं, एपिजेनेटिक बाद में आएगा, जेनेटिक इम्प्रिंटिंग जीन एक्सप्रेशन में, जेंडर डिफरेंस इन जीन एक्सप्रेशन। सर मेल और फीमेल का अलग अलग एक्सप्रेशन होता है, वो वाला। समझा नहीं? सर वो मेल और फीमेल के जीन्स हाँ अलग अलग हाँ तरीके हाँ, से हाँ भाई, इम्प्रिंटिंग में वही है। सर इंट्रोडक्शन में ये ट्रांसलेशन भी हम डाल सकते हैं क्या? जीन एक्सप्रेशन है तो मतलब वो जीन से जो भी जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि हाउ जीन्स एक्सप्रेस इन डिफरेंट कंडीशंस। हाँ तो थोड़ा सा 2-3 लाइन डालेंगे क्या ट्रांसक्रिप्शन या यार ट्रांसलेशन? ऐसा है कि 2-3 लाइन 50 डाल दो, पर है 10 मार्कर, 7 मिनट के अंदर लिखना है। ठीक है ना? तो जो भी डालो सोच समझ के डालो। तो will this have sex chromosome related diseases also or no? नहीं सुना? तो सेक्स क्रोमोसोम डिजीज वाला इसमें नहीं आएगा ना? नहीं उसमें डाल सकते हो एक्सप्रेशन का, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम है तो जीन कहां से आएगा भाई? उसके लिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन जीन क्रोमोसोम्स करके। डिस्कस मेजर स्पीसीज ऑफ अस्ट्रोलोपिथेकस discovered from South and East Africa. Describe the discovery, physical features and significance of टोंग बेबी। टोंग बेबी के कौन से फीचर पता है आपको? sir, the first स्कल का discovery that फीचर है। was, पार्डन? sir, the skull that was discovered by Raymond Dart was of a baby of 6-year-old. We will write. अरे बेबी ने किया था, फिर वो डीन फाक ने उसको 2 to 3 भी तो कर दिया ना, PNAS 2011। भूल क्यों जाते हो? टोंग बेबी के फिजिकल फीचर्स आप लोगों के पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं, जिसकी वजह से डार्ट का दिमाग खराब हो गया और लोगों ने गालियां दी उसको, बिकॉज पीपल ट्रस्टेड पिल डाउन। ठीक है ना? दे डिडंट ट्रस्ट डार्ट because they thought it is the skull of the baby, that is why it may be having these features। एडल्ट होता तो एप जैसे फीचर्स होते। डायग्राम्स विल बी वेरी क्रूशियल। टोंग बेबी का प्रैक्टिस किया हुआ है आप लोगों ने सारा। Paleolithic environment in the light of available evidence with special reference to India।
इसमें क्या करोगे? Environment, Paleolithic environment, in the light of available evidence. Fluvial and interfluvial. हाँ, नॉर्थ और साउथ दोनों को अलग अलग करोगे। इसमें ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल। हाँ, ग्लेशियल इंटरग्लेशियल इन द नॉर्थ, फ्लूवियल इंटरफ्लूवियल इन द साउथ, फिर उनकी टाइमिंग्स वगैरह, फिर किस टाइम पे कौन सा हो रहा है, लोअर मिडिल अपर, शांति पप्पू एटल 2011 एंड अखिलेश एटल 2018। कुछ समझ आ रहा है? जी सर। एविडेंस नहीं है, सोहन का एविडेंस है, आपका वो मद्रासियन का एविडेंस है, नामदा का एविडेंस है, आपका ये जो आपका शिवालिक्स का एविडेंस है। सर हम टूल के साथ रिलेट कर सकते हैं ना एनवायरनमेंट को, मतलब टूल माइक्रोलिथ हुए और उसके बाद। यार गजब बेवकूफ हो यार, पेलियोलिथिक में माइक्रोलिथ कहाँ से आ गए यार? कैसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ पेलियोलिथिक कह सकते हो, पर पेलियोलिथिक में नहीं आएंगे ना। ठीक है, पहले टूल्स हमें माइक्रोलिथ मिले थे, रॉबर्ट बूथ 1863। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है। एल्यूसिडेट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ malnutrition, डिस्क्राइब प्रोटीन कैलोरी malnutrition with suitable examples. Some of it you can attempt with the help of your current affairs, some with the help of your knowledge of tribal health. Malnutrition कितनी तरह की होती है? So 3 types. Overnutrition, undernutrition, undernutrition. ठीक है कि नहीं? और फिर उसका सारा कंपोनेंट जो है, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी वजह से जो होता है। लेकिन ये प्रोटीन कैलोरी malnutrition टर्म हम यूज नहीं करते अब, ये पहले यूज करते थे, अब प्रोटीन एनर्जी malnutrition करते हैं। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? सर ग्रोथ वाला ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं इसमें? डिजीज होती है सर। करना चाहो तो करो, लेकिन नहीं है जरूरत उसकी। So can we add kwashiorkor and marasmus? क्वाशियोरकोर, मेरामस, कोज, कॉन्सिक्वेंस लिख देंगे। ये मेरा देश है जहाँ का बचपन मरस्मस और क्वाशियोरकर जैसी बीमारियों से प्रिवेंशन और और ट्रीटमेंट जवानी कुछ रोगों विभिन्न गुप्त रोगों से अलंकृत है। जी सर। मेरी कविता में आ गया ना, मरस्मस और क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकोर ये दोनों क्या होते हैं, उसके सिम्टम्स भी आने चाहिए। सर कोज, कॉन्सिक्वेंस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट। पहले लेमैन टर्म्स में बताओ, कैसे पता लगेगा क्वाशियोरकर है? You people find in the slums where the body is skinny but tummy is bulging outside because of the excessive growth of spleen. And marasmus, splitting of skin and oozing out of the blood. Yes. क्या है यार? सर उसमें एज डिफरेंस भी लिख सकते हैं ना, मारास्मस 3 to 9 months में होता है और क्वाशियोरकर 2 to 5 years में। नहीं, मरासमस का रेंज ज्यादा है, क्वाशियोरकर की रेंज चाइल्डहुड है। मरासमस कैन कंटिन्यू अप टू 10-11 ऑल्सो, जनरली अर्लियर होता है। सो दिस वाज द सेक्शन दैट यू कॉल सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इसमें कितनी सोशल कल्चर पूछी है उसने? अब ये सेकंड पार्ट है, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सर क्वेश्चन 3 रहता है अभी, 3 और 4। 3, 4 एक मिनट 2। अच्छा, ये दूसरी तरफ है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज ह्यूमनाइजेशन प्रोसेस? डिस्कस द मेजर ट्रेंड्स इन द ह्यूमन एवोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स एंड इलस्ट्रेशंस। बाइपेडलिज्म से रिलेटेड जो हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ होमो वाला जो मसला है, बायोलॉजिकल चेंजेस क्या आ रहे हैं, कल्चरल चेंजेस क्या आ रहे हैं, विद डायग्राम्स आपको रिप्रेजेंट करना है। क्लिफर्ड गेट्स अंतिम सर करेंगे। सबसे पहले 3 क्वेश्चन आए थ्योरीज में। फर्स्ट,
One is Geert's take on religion and psychological theories versus anthropological theories for religion. So, how will you take this question up? Geertz is talking about symbols and their interpretation. Okay, so we'll start from there. Anything can be a symbol, be it a cross or a om, or as natural as a eclipse. That it's a common notion among Hindu families that whatever the food is there after the eclipse, you should throw it away. So these things, Yes, sir. these things will come up. Then you will explain what a symbol can be and how Geertz has defined what symbol is as a vehicle of culture. Okay. Then again, this theory, it's a part of psychological theories. The Geertz is interpretive approach. It's a part of psychological theory, and then you transform towards psychological and anthropology. अब theories to explain religion में कौन-कौन सी theories है? Animism. Animism is? Animism. Animism is Belief in supernatural. anthropological or psychological? Anthropological. अच्छा. Come again? Psychological, sir. मतलब तो यहाँ पे एक चीज we should notice that the theories are evolutionary theories majorly that are psychological theories also. Yes, sir. Functional तो individual हो जाएगी Malinowski की. Again, then you have psychofunctional and psychological. So the psychological theories are somewhat also, not somewhat, also evolutionary theories, because you get that progression of the religion from animism to polytheism, to monotheism, or okay. So this way you have to take it. The differences won't be much, but you have to quote the similarities in the approach. Okay. सर इसमें प्रेफर्ड ग्रेड्स की रिलीजन की डेफिनेशन में डाल सकते हैं जो Yeah, हाँ, definitely डालेंगे. Just a minute. I told you when I was telling you about the approaches to study, you had animism, you had animatism, you had totemism, and you had psychofunctional. I told you these two are functional theories, these three are evolutionary theories, and these three are psychological theories. psychological theories. क्लासरूम उठा के देखना ना, ठीक है? सर तो अभी ये एंथ्रोपोलॉजिकल पूछा तो उसमें क्या लिखेंगे फिर? You have to relate the two, you don't have to compare the two. Psychological approach in anthropology cannot be differentiated from evolutionary or functional. आपका कल्चर पर्सनैलिटी स्कूल जो है ये साइकोफंक्शनल अप्रोच है, ये आपके जो इंटरप्रेटेड थियरीज हैं ये साइकोफंक्शनल अप्रोच है ये. So you have to show the relationship between the two, not to contrast the two. What is mixed longitudinal method of studying human growth? Discuss its merits and demerits. सेमी लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं, पर क्या करेंगे इसमें, शुरुआत कैसे करेंगे? बेवकूफ, डिफाइन कौन करेगा? डेफिनेशन आएगी पहले, उसके बाद बताएंगे कि ये मेथड क्यों लाई गई थी. फिर realizing the limitations of the two. One is a viable method, but it's not an accurate method. The other is accurate, but it's not viable. वाइबल बिकॉज कॉस्ट फैक्टर है, टाइम ज्यादा लगता है. उसके बाद जो है सेमी लॉन्गिट्यूडनल ग्राफ बनाना नहीं भूलना है, हमेशा ध्यान रखना, जिसमें जुवेनाइल ग्रोथ स्पर्ट और एडोलेसेंट ग्रोथ स्पर्ट दोनों क्लियरली विजिबल हों. एक्यूरेसी ऑफ ग्राफ्स मैटर्स द मोस्ट. 15 नंबर का है, ठीक है. तो बट इसके स्पेसिफिक कोई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है क्या? पढ़ा? ये मेथड के कोई स्पेसिफिक मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है या जो दोनों से काउंटर? मेरिट तो यही है कि उसकी क्रॉस सेक्शनल मेथड की बहुत सारी कमियां दूर हो जाती हैं, लॉन्गिट्यूडनल के बेनिफिट आ जाते हैं, पर डिमेरिट ये है कि एक्यूरेट नहीं है. हाँ, ठीक है, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है आपको. ठीक है. डिस्कस द रोल ऑफ मैरिज रेगुलेशंस इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इन इंडिया फॉर स्ट्रेंथनिंग सोशल सॉलिडेरिटी. रेगुलेशंस का तो काम ही सोशल सॉलिडेरिटी होता है यार, इसमें एडिशनल क्या लिखोगे?
जो भी रीजंस हैं सारे के सारे, वो सॉलिडेरिटी whom you can marry and whom you can not नहीं करोगे तो पिटाई हो जाएगी, हैं? क्यों आ जाएगी? हुक्का पानी बंद हो जाएगा भाई। वो सारी सारी चीजें वो आएंगी, तो उसमें कोई नई चीज तो आपको करनी नहीं। बट इसमें एक क्या है, इन इंडिया क्या एडिशनल रहेगा? अनुलोम एंड प्रतिलोम। बेवकूफ लोगों, हाँ वही हाइपर हाइपर, मैं संस्कृत में बोल रहा हूं उसको। एक छोटी सी चीज आपकी आंसर की क्वालिटी में डिफरेंस ला सकती है और स्कोर आपका बढ़ा सकती है। डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन स्केलेटल रिमेन्स। कौन कौन से? ओसिफिकेशन टेस्ट सर, एज हो गया, सेक्स हो गया, और सेक्स में कौन सी एडिशनल चीज बताई थी मैंने? सेक्रल कर्व जो बेंट बैकबोन में सैक्रल कर्व। कौन सा इंडेक्स? हील शेप। केवल कृष्ण का जो है हील इंडेक्स। और हाइट के बारे में कौन बताएगा? मेल लंबे होते हैं हाइट में, तो हाइट के बारे में क्या करेंगे? फीमेल के बेस पे मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। वो तो होगा ही ना यार, जो चीज आप नहीं करने वाले हो मैं वो बता रहा हूं खाली। आइडेंटिफाई मेजर म्यूजियलिस्टिक साइट्स एंड डिस्क्राइब द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल फीचर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। अब बताओ पेपर 1 में क्या कर रहा है ना? पेपर 1 में ये कर रहा है कि अगर आपने ये सोचा कि मैं आर्कियोलॉजी 2 घंटे के इंटरवल में रिवाइज कर लूंगा, तो मतलब आप गए। मैं पहले भी कह रहा हूं, आइडेंटिफाई मत करो कि ये पेपर 1 की चीज है या पेपर 2 की है। ठीक है, तो क्या करोगे इसमें? छोड़ो, नहीं पूछता, वो कर ही लोगे, मतलब पता है मेरे को। ये हो गया 3 और 4, अब 5 और 6 ये हो गया ना? नहीं हुआ। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या दोगे? स्किन कलर या डर्मेटोग्राफिक्स। चाहो तो पॉलीजेनिक में आप आरएच को भी डाल दो। यस सर, आरएच ब्लड ग्रुप। क्योंकि वो 3 जीन 5 एलील हैं। ठीक है ना? प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ राखी गढ़ी, कितनी बार बताना पड़ेगा? राखी गढ़ी है, लोथल है, सिनौली है, अग्रवाल सिनौली पूछ देगा और क्या, अगर कुछ और निकलेगा तो। ग्लोटोक्रोनोलॉजी में बता दिया। मेनोपॉजल सिम्पटम्स, इस बैच के बच्चे कौन कौन है? इस बैच के, अगस्त वाले बैच के मेनोपॉज की बात कर रहे थे अभी हम परसों, याद है? जून वाले बैच में कर रहे थे। अरे मेनोपॉज की बात, जब मैं वो 2.5 मिलियन ईयर्स के गैप की बात कर रहा था, तो उसी के दौरान मेनार्की और मेनोपॉज जो बताया मैंने, मैं अगस्त बैच की बात कर रहा हूँ। ये दूर बैठती है ना, इसलिए वो आवाज पहुंचने में टाइम लगता है, आई से आ जाती है ना बीच में। कह तो रहा हूं मैं, क्या क्या चेंजेस आए मेनोपॉज की वजह से, इसका तो एंथ्रोपोलॉजी से, हालांकि इट इज अ जॉब ऑफ गायनेकोलॉजिस्ट, वो ज्यादा बेहतर बता पाएगी, पर जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं वो आप लोगों को पता होने चाहिए। और इवोल्यूशनरी चेंजेस जो आते हैं जिसकी वजह से माँ और बेटी में कंपटीशन खत्म हो गया चाइल्ड बर्थ के लिए, दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ किनशिप, वो नॉलेज आपको होनी चाहिए जरूर। थोड़ा सिम्टम्स बढ़ा सकते हैं। फिर से बोलो।
सिम्टम्स में डालना वो उचित रहेगा क्या? जितना आता है उतना ही डालोगे ना भाई। वैसे देखो ना, पेपर सेटर की मर्जी है, वो कुछ भी पूछ दे, है ना। आप तो उतना ही लिखेंगे ना जितना आता है, बाकी काम तो मैं करूंगा ना। मेरी नजर में पिछले 3 साल में सबसे अच्छा पेपर आया ये। इट्स गोइंग टू बी रियली वेरी स्कोरिंग। मैं अपने बच्चों की बात कर रहा हूं, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा। तो उसका एक फायदा क्या होगा कि लोग ये जो सोचते थे कि आंसर तो अपने आप ही नंबर आ जाते हैं, वो उनका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा कि अपने आप नहीं आते भाई। ठीक है, ये कल्चरल लैग की बात मैं कर चुका हूं। ये मेलनोस्की एंड मार्गरेट ये सर बताएंगे। Next is Malinowski, no? मेलनोस्की एंड मीड। This I hope you guys know the gossip that we discussed about Malinowski and Margaret Mead, that we have to go there. So That, do we go for the diary of Malinowski? Right, the diary is discovered again. He wrote 13 articles in a span of 9 years that helped the British, the colonial powers basically administer better. Okay, these will come up. Then for Margaret Mead, her work on the coming of age in Samoa, that was criticized heavily, and the reason was her life was been so promiscuous that she ultimately applied. It was claimed that she interpreted Samoans in the same way she was living her life. She was one of the most popular academic to appear on TV in the 20th century, 1900s, and the way she had lived her life with so many multiple partners, both male and female. So that again got the question that this is the reason she pictured Samoans in such a way that sexual activities are quite promiscuous and random. Discuss the impact of globalization on the economic systems of indigenous communities. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है सर। हाँ, डायरेक्ट तो है, बताओ तो सही। सर एस्किमोस यूजिंग गन्स फॉर हंटिंग। अरे वो तो मैं शुरू में बता चुका हूँ। इंडिजिनस पीपल कौन होते हैं? नेटिव पीपल। इंडिया में इंडिजिनस पीपल कौन है? भाई साहब, यूएन डिक्लेरेशन पढ़ लेना था इंडिजिनस वाला, और इंडिया ने जाके बोल दिया था हमारे यहाँ सारे ही इंडिजिनस हैं। Those who are residing. हाँ, जो पेपर 2 कर चुके हैं उनको तो याद रहना चाहिए भाई, है। मैन हैज स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म मेमोरी। आपको भी काफी देर हो गया पढ़े हुए, तो अब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, और बेसिक इशू क्या था जो हमने ग्लोबलाइजेशन एंड ट्राइबल्स के लिए जब बात की थी, तो मैंने बताया था that at the time of independence these people, they were declared as weaker sections and they were given special protection under the constitution because it was realized that they cannot compete with the general population. But when we entered the road to globalization, we took no care, such care. तो शुरू में जितना भी इम्पैक्ट था सारा ही नेगेटिव था, और सारा ही नेगेटिव जितने भी डिस्प्लेसमेंट वगैरह के प्रोग्राम हुए हैं, चाहे आप इंडिया की बात कर लो, चाहे आप अफ्रीका की बात कर लो, वो सारे का सारा इम्पैक्ट जो है एक जैसा था। लेकिन पिछले एक डिकेड में जो कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, दैट यू हैव टू टेल, एंड यू हैव टू टेल दैट मोर दिस काइंड ऑफ promotion has to be there, particularly their kind of skills have to be promoted. क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई लेसर कल्चर कम्स इन कांटेक्ट विद अ मेजर कल्चर, उसकी अपनी वैल्यूज तो खत्म हो जाती हैं। विदाउट गेनिंग एनीथिंग और लूजिंग एनीथिंग पीपल बिकम पुअर, क्योंकि उनके यहाँ स्पेशल पर्पस बनी है, हमारी ऑल पर्पस बनी है। तो उनकी वैल्यूज को जो है प्रमोट करना चाहिए, सो दैट दे कैन आल्सो बी कंट्रीब्यूटिंग हेल्दी मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। फिर ये आ गया, डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन द करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो होगा ना, पास्ट सिनेरियो में तो नहीं सोच सकता। अभी तो 15-20 साल तो हुए हैं इसको। हाँ जी, क्या करोगे इसमें? DNA technology आता है आप can be सबको, used in criminal. मुझे पता है सबको आता है।
और कौन सा है? अरे भाई 7. Describe various methods of qualitative data analysis. Highlight some popular computer software used in qualitative analysis. ये बताओ पॉपुलर मेथड कौन कौन से हैं क्वालिटेटिव? So can we use ANOVA? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव नहीं है. डिस्क्राइब वेरियस मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस. पहले तो डाटा कलेक्शन, भैया इंटरव्यू क्वेश्चन है जो है वो शेड्यूल है, वो तो क्वांटिटेटिव है. इंटरव्यू कैन बी देयर, ऑब्जर्वेशन Personal कैन बी interview, देयर, participant पार्टिसिपेंट एंड observation. नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कैन बी देयर. ठीक है. फिर आप बात करोगे डिजिटल एथनोग्राफी की, तो सारे तो इंजीनियर हो, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करना है मुझसे बेहतर जानते हो तुम लोग. ठीक है. इसमें सॉफ्टवेयर का नाम लिखना है. हाँ, ये इंटरेस्टिंग है. What assumption must be met for a population to be in genetic equilibrium? सर माइग्रेशन नहीं वगैरह वो. सर हार्डी वेनबर्ग का पूरा सिंपल, हार्डी वेनबर्ग. ठीक है. और उसके बाद एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम. सर एवोल्यूशन नहीं होगा. हाँ, अरे भैया एवोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन एवोल्यूशन के लिए जो है वो डिसइक्विलिब्रियम जरूरी है. एक आज इक्विलिब्रियम है तो सारे फैक्टर जीरो तो होंगे नहीं भाई. यस सर. कंपेयर करने के लिए चाहिए. हाँ, कंपैरिजन के लिए पहली दोनों एप्लीकेशन हार्डी वेनबर्ग की. डिस्कस पॉलिटिकल एंड मैथोडोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नेशनल कैरेक्टर. ये तो सर बताएंगे. And finally, national character. Huh? National character study was taken up by. कुछ नहीं आ रहा. So the Chrysanthemum. इसने किया था Chrysanthemum and the Sword. Chrysanthemum and the Sword. Ruth Benedict. And the Sword, right? And the team was led by Ruth Benedict. Ruth Benedict. The attempt was made to understand the Japanese culture. Here we can add that no, Americans were filled with a feeling of what will say, being superior after they have won the war, and they wanted to study this countries that they think are beneath them. Okay, and the first attempt was made to study a society at a country level. Okay, methodologies and all I have already shared. Clinical interviews and all those things will come up. These were too simplistic to. Like for a nation, it was too. It was too vague. वो तो criticism में आ जाएगा ना. जो भी किताब में अच्छा explain किया. That is quite मतलब pretty much direct question. I was hoping कि आएगा और आ गया. Sir, what was the political aspect? Like America wanted to win over the other nations, or neocolonialism was introduced? Basically, they wanted to understand what was the perspective of Japan. So much devotion towards the emperor was there that they stuck to it. Despite being bombed one time, they did not surrender. That will again come as a political aspect. And the other thing that I highlighted, this feeling of superiority that US has. And sir, it is written that contemporary relevance of such studies. Contemporary. Elucidate the second part of the question. Contemporary relevances are not there because that attempt was criticized that you are simplifying a country into so few terms that it was ultimately criticized, and that such attempt was not taken again. नहीं होता. डिफ्यूजन इतना हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन इतना हो रहा है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ द पीपल ओरिजिनली दैट वाज देयर, यू कैन नॉट टॉक इन दोस टर्म्स. अमेरिकन कैरेक्टर द वे इट वाज, है ना. अब वो कैनेडियन कैरेक्टर और अमेरिकन कैरेक्टर सेम है ना. देख रहे हो कनाडा में क्या हो रहा है, वो भी तो अमेरिकन कैरेक्टर है ना. कैन यू रिलेट इट टू अमेरिका? हाँ, तो वो भी तो अमेरिकन ही है ना भाई. तो वो जो नेशनल कैरेक्टर थिंग वाज देयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. लार्ज स्केल माइग्रेशन इज देयर, देन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज देयर, knowledge is there, so many general people read from across the world,
various researches they go through. So the change in you can say some commonality in thought and action takes place. क्रिटिकली एग्जामिन अपादोराई, ये जाधव जी ने डाला है, ग्रुप में डाल देंगे. डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम्स विद सूटेबल एग्जांपल्स. ये तो डायरेक्ट है, वो डायग्राम्स जो Turn up and down. Year 21 trisomy. Sir, euploidy and aneuploidy. स्ट्रक्चरल डिलीशन, एडिशन, Down डुप्लीकेशन, syndrome. इन्वर्शन, ट्रांसलोकेशन. रिकॉम्बिनेशन पे लिखना है सर. अब रिकॉम्बिनेशन तो नॉर्मल है ना, एब्नॉर्मेलिटीज पूछ रहा है वो. ठीक है. फिर उससे जो भी आपका क्राइडोकैट है, एडवर्ड है और टर्नर लाइक सिंड्रोम है. एएल क्रोवर का कंट्रीब्यूशन किनशिप स्टडी में क्या है? टर्मिनोलॉजी. बोलो बोलो. टर्मिनोलॉजी दिया था 6-fold. 6-fold और डिटर्मिनेंट्स आल्सो. Yes, determinants of kinship. उतना अच्छे से रिकॉल नहीं करवा रहा सर, बट यही याद आ रहा है. पता तो है ना, वो रिकॉल क्या, वो 1 घंटे में क्वेश्चन पेपर तुम्हें दे दिया जाए और बिना बताए दे दिया जाए? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है कोई. वो तो अल्लाह मियाँ है, वो इम्तिहान लेता है आपका, क्वेश्चन पेपर भी नहीं देता. जिंदगी चल रही है, तुम्हारा इम्तिहान चल रहा है और तुम्हें पता भी नहीं कि क्वेश्चन पेपर क्या है. पर यूपीएससी ऐसा नहीं करती, कम से कम पहले से बता देती है ये डेट शीट होगी करके. ठीक है. नाउ टेक इट फ्रॉम मी कि ट्रेंड कभी भी सेम नहीं रहने वाला है. पर वो तो जो ब्रॉड आउटलाइंस और ब्रॉड जनरलाइजेशंस हैं जो मैंने आपको कह रखा है, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, फॉसिल्स, आर्कियोलॉजी, प्राइमेट्स, 200 नंबर के क्वेश्चन आने हैं तो आने ही आने हैं. अभी भी काउंट कर लो तो करीब करीब 200 नंबर के वो हो रहे हैं. हालांकि पेपर 2 भी अपादोराई रेडीमेड वो है. वो ये अपादोराई जो है, ही इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली. पता नहीं है, मेरे को कभी पसंद नहीं आया ये, बट हमारे यादव जी हैं, इन्होंने 20 अगस्त को डाल दिया था ग्रुप में. तो ये इनका जो है थ्योराइजेशन जो है, दैट इज मेनली विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबलाइजेशन एज ए फिनोमेनन. He says that there are 5 basic landscapes that are about the people and their migration. Migration is ethnoscape, technology is technoscape, media, mediascape, ideology, ideascape, and finance, financescape. Globalization, according to Apadorai, occurs at the point of rupture and disjuncture between these different landscapes. ये 5 तरह की जो चीजें जो हैं, इसमें जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, अपहेवल्स क्रिएट करता है. दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. लेकिन बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट दे डू नॉट एग्री टू दिस आइडिया ऑफ अपादोराई. उसके बारे में सारी डिस्कशन है, विच यू विल गेट इट. ऑल डिटेल्स आर देयर एक्चुअली. किधर है वो हाथ वाला? ठीक है ना. These 5 things that I was talking you about. उसके बाद जो ये फिर नहीं होता, एक उंगली से करो. ठीक है. The flow of capital, of people, of ideologies, of technology help create a new imagined worlds that are fluid and capable of producing a globally variable synthesia. That is, one type of imagined world can trigger similar imaginaries in other parts of the world, imageries in other part of the world, yet possess different shapes and forms. Whatever changes take place in one part of the world, they are also seen in other parts, but the shape changes, the priorities changing depending on the needs of the cultures or need of the people. ये in simple way समरी है अपादोराई के कहने की. ये आपने कहा था कि कोई अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में चर्चा हुई तो उसका इंफॉर्मेशन. हाँ, ठीक है. ठीक है. इसको हम अपने वेबसाइट पे भी डाल देंगे, तो जो लोग जो हैं, those who are not our students, they can also get it.
पर मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार पूछा जाए तो उसके चांस बहुत कम होते हैं, बिकॉज देर आर मोर देन 200 एंथ्रोपोलॉजिस्ट विच एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन आस्क अबाउट। वो ऐसे लोगों का दोबारा क्यों पूछेगा? लाइक मैं, इफ आई वाज अ पेपर सेटर आई वुड नेवर आस्क हिम। तो डिपेंड करता है प्रायोरिटीज ऑफ द पेपर सेटर। लेफ्टिस्ट पेपर सेटर होगा तो जरूर डालेगा उसको, तो पेपर सेटर कौन सा अपने आप इमेजिन करो। ठीक है, ऑन एन एवरेज including these thinkers which sir will discuss, the paper is at least 10 to 15% more scoring for our students than it has been for the last 3 years or so. शुभम के बाद जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि 10 to 15% ज्यादा स्कोरिंग है। बाकी पेपर 2 जब स्कोर करेंगे आप डिस्कस करेंगे तो ओवरऑल क्या वो होता है रिस्पांस, वो आपको पता लग जाएगा। मैंने कल भी क्लास में बच्चों से बोला था कि मेरा पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, आई एम गेटिंग टू एक्साइटेड आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। जब अक्षत और श्रेयांश का रिजल्ट आया था उस वक्त मैं एक्साइटेड हुआ था, उसके बाद में कल एक्साइटेड हुआ, क्लास भी पूरी नहीं की हमने। हाँ, इसी का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, अब उल्टी गिनती शुरू कर दो। अब बोरी भर के नंबर मिलने वाले हैं, जितने फॉसिल लीकी को नहीं मिले थे ओल्ड बाई गार्ज में उससे ज्यादा नंबर आपको मिल जाएंगे।